Hello students, I am here again with a new video on electrostatics. We have already done electric field, electric potential, and now capacitor. This is a very common term we all are aware of, and this capacitor is used in the electric fans, in electric motors, and the purpose of a capacitor is charging. So I will start with the very basic terms which are related to capacitors, and after that we will be discussing about the principle and working of a capacitor. So here we are having the few points, important points that will be discussed in this video. The first one is conductors and insulators. The second one is free charges and bound charges, and then dielectrics and electric polarization, then capacitors and capacitance. So conductors, you will be aware of the term very well. We use this term from the very beginning when we start studying science, that these are the substances which allow the movement of electric charges through them when an external electric field is applied. For example, silver, copper, acids, and alkalis. In the junior classes, you must have seen that the conductors are those substances through which we can pass the electric current or heat. Now here we will talk in terms of the electric charges. So the conductors are those substances which allow the movement of electric charges through them when an external electric field is applied and we are having the potential difference across the two ends of the conductor. So the common conductors we use are silver, copper, acids, and alkalis. In silver, we are having the electrons as the carriers. In copper also, as it is a metal, we are having the electrons. In acids and alkalis, we have the ions as the charge carriers. After that, insulators, these are the substances which do not allow the movement of electric charge through them when an external electric field is applied. For example, glass, wood, distilled water. So these are the substances through which even after the application of the electric field, we cannot have the movement of the electric charge through them. After that, the terms we will use here are free charges and the bound charges. अब free charges कौन से होते हैं? Free का मतलब क्या होता है? जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है. Charges we all know the positive and the negative charges we are having in all the matter. So in metallic conductor, the electrons of the outer shell of the atoms are loosely bound to the nucleus. अब मेटल होता ही वो है जिसके पास क्या होता है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है जिसके आउटर शेल में, और जो उस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है किसी दूसरे एटम को, एंड इट कैन बिकम इलेक्ट्रो पॉजिटिव. तो this electron get detached from the atoms and move freely inside the atom. So these are the free charges, and the positive ions which consist of nuclei and electrons of the inner shells are bound charges. अब आपको पता है कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अलावा उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं. न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है. तो न्यूक्लियस जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से होता है. अब किसी भी एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंड है वो निकल जाएगा तो बाकी जो बचेगा वो क्या बचेगा, दैट विल बी अ पॉजिटिव आयन. उसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और बाकी बचे हुए क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स. अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो एटम जो एज अ होल पहले न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन के चले जाने के बाद उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो फ्री चार्ज है, और जो हमारे पास आयन है, पॉजिटिव आयन विच कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई एंड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इनर शेल्स, उसको हम बोलते हैं बेटे बाउंड चार्जेस. उसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब लिक्विड्स हैं जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं. दे हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एज द चार्ज कैरियर्स. इंसुलेटर्स में क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन तो हर एटम में होते हैं, लेकिन इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियाई and they cannot be detached from the atoms, so the charges in insulators are bound charges. अब insulator में भी nucleus है,
प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, सब कुछ है, लेकिन जो उसके इलेक्ट्रॉन है अगर वो ही फ्री नहीं है तो जो बाकी न्यूक्लियस है उसके ऊपर भी कोई जो न्यूक्लियस और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर कंसिस्टिंग द रिमेनिंग एटम, उसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगा. द एटम एज अ होल विल रिमेन न्यूट्रल. सो दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उनके जो चार्जेस हैं वो बाउंड चार्जेस हैं. After that, the rubbed insulators are able to retain the charges placed on them. So they are called the dielectrics. Rubbed insulator का मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई इंसुलेटर है और आप उसको रब कर रहे हो किसी भी चीज के साथ, फॉर एग्जाम्पल इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब एक ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो वो क्या है? ग्लास रॉड तो इंसुलेटर है, लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. वो कैसे आया? क्योंकि ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिल्क क्लॉथ के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं. वो आप लोगों ने पढ़ रखा है. तो द रब्ड इंसुलेटर्स दे कैन ऑल्सो रिटेन चार्जेस प्लेस्ड ऑन देम, सो दे आर नोन एज द डाई इलेक्ट्रिक्स. डाई इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि charges ki means they are retaining some charge, but rubbed conductors could not retain charges placed on them but immediately drained away the charges, so they are called non-electrics. अब ये तो हमने बात करी रब्ड इंसुलेटर्स की, लेकिन अगर रब्ड कंडक्टर्स हों तो वो चार्जेस को रिटेन नहीं कर पाते, वो इमीडिएटली ड्रेन कर देते हैं चार्जेस को, क्योंकि चार्जेस उनके अंदर से फ्लो कर जाते हैं. सो दे आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रिक्स. Again, we can define a dielectric as a substance which does not allow the flow of charge through it, but it permits them to exert the electrostatic forces on one another through it. It is essentially an insulator which can be polarized through small localized displacements of its charges. अब डाइइलेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटर होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर वो इंसुलेटर है तो फ्लो ऑफ चार्ज तो उसमें से होगा ही. लेकिन अगर ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर उसके साथ में आप एक दूसरी ग्लास रॉड लाते हो जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है. ये हम पढ़ चुके हैं. तो इसका मतलब जो डाइइलेक्ट्रिक्स हैं उनके ऊपर जो चार्जेस हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एक्सर्ट हो सकते हैं. So it is essentially an insulator, so that we have discussed, which can be polarized. अब polarization क्या होता है? Polarization का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, अगर हम उसको थोड़ा सा अलग अलग कर दें, उनके जो सेंटर्स हैं आपस में वो एक दूसरे के ऊपर ना आए, तो वो पोलराइज्ड हो जाता है. अभी हम पढ़ते हैं उसको. थ्रू द स्मॉल लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ इट्स चार्जेस, अगर हम उनके थोड़े चार्जेस को थोड़ा सा भी अलग अलग कर देते हैं तो वो पोलराइज हो जाते हैं. Now you can see the difference in the behavior of a conductor and a dielectric in the presence of the external electric field. अब ये देखिए, ये कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. E नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम शो कर रहे हैं यहाँ पर. और जब हमने इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसके जो चार्जेस हैं ये रीअरेंज हो जाएंगे. नेगेटिव चार्ज सारा यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज सारा यहाँ पे आ गया. तो अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब इसके ऊपर ये ई इंड्यूस्ड हो गया बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन ऑफ द चार्जेस. अब ये देखो, ये जो लेंथ दिखाई है मैंने दोनों वेक्टर्स की, इट इज सेम एंड ऑपोजिट. इसका मतलब जितना ई नॉट था उतना ही ई इंड्यूस हो गया, क्योंकि कंडक्टर में चार्जेस फ्री थे मूवमेंट के लिए, तो वो एजेस पे आ गए. तो अगर वो एजेस पे आ गए तो यहाँ पे फील्ड क्या हुआ? नेट फील्ड दैट इज इक्वल टू 0. अब एक डाइइलेक्ट्रिक में देखिए, डाइइलेक्ट्रिक में भी ये जो लाइंस मैंने बनाई हैं ये क्या है? दीज आर शोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच हमने वो डाइइलेक्ट्रिक को रखा है. अब ये क्या है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द
इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसमें भी इंड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. जो भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज रीओरिएंट होके इस डायरेक्शन में आ गया, पॉजिटिव इधर चला गया, तो इसमें भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. नाउ यू कैन सी अगेन फ्रॉम द लेंथ ऑफ द वेक्टर्स कि ई इंड्यूस्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इससे कम है, तो देयर विल बी अ नेट field present in the dielectric. So by reorienting the molecules of the dielectric, so E induced is opposite to E naught, but does not exactly cancel this field, it only reduces it. So there is a net electric field inside a dielectric when it is placed in a external electric field. After that we have polar and non-polar dielectrics. पोलर का मतलब क्या होता है? जिसमें दो पोल्स होंगे, अलग अलग आपको दिख रहे होंगे, वो क्या होगा? पोलर. नॉन पोलर जिसमें नहीं होंगे. सो ए मॉलिक्यूल दैट हैज सिमेट्रिकल शेप एंड जीरो डाइपोल मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल ये आपका हाइड्रोजन है, इसमें दोनों हाइड्रोजन है, तो ये क्या हुआ? नॉन पोलर. किसी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव आप सेपरेट नहीं कर सकते हो कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है. पोलर मॉलिक्यूल्स हैव अनसिमेट्रिकल शेप्स. जैसे ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसमें क्लोरीन क्या होता है? नेगेटिव, और H क्या होता है? पॉजिटिव. तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोलर. एंड इट हैज अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट. आफ्टर दैट, polarization of a polar and non-polar dielectric in an external electric field. Polar dielectrics have permanent dipole moment in the absence of any external electric field. We have seen above, and the dipole moment of the different molecules are randomly oriented. So net dipole moment is zero. When an external electric field is applied, the dipoles tend to align with the field, and there is a net dipole moment in the direction of the field. See, These are the polar molecules. यहाँ पर हमने कोई भी फील्ड नहीं लगाया है, सब में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, लेकिन इनकी जो ओरिएंटेशन है वो रैंडम है. रैंडम का मतलब है सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन. तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा? जीरो. लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है तो सारे पॉजिटिव आपको एक तरफ दिख रहे हैं, सारे नेगेटिव आपको एक तरफ दिख रहे हैं. इसका मतलब इस सिचुएशन में नेट डाइपोल मोमेंट आपको मिलेगा. तो जब हमने पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके पास नेट डाइपोल मोमेंट होगा. पहले उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या था? जीरो. उसके बाद है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, द सेंटर्स ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल कोइंसाइड. देखिए, कोई फील्ड नहीं लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव इकट्ठे इकट्ठे हैं, यानी कि उनके जो सेंटर्स हैं दोनों चार्जेस के वो कोइंसाइड कर रहे हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो है. लेकिन एक्सटर्नल फील्ड जब हमने लगा दिया तो जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस हो गया है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. यू कैन सी फ्रॉम हियर. सो ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इन ईच मॉलिक्यूल, देयर इज अ नेट डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर. Hence, both polar and non-polar dielectrics develop a net dipole moment in the presence of an external electric field. So this fact is called polarization of the dielectric. After that, I am coming to electrical capacitance of a conductor. Capacitance क्या होता है? It is the ability of a conductor to hold the electric charge. कैपेसिटी भी कह सकते हैं इसको, कि एक कंडक्टर कितना चार्ज अपने अंदर होल्ड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी. इफ अ चार्ज Q is put on an insulated conductor, तो it increases its potential by V. This we can remember with the formula हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, that V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R. तो वो Q क्या है? चार्ज है. चार्ज किसको दे रहे हैं हम? कंडक्टर को. इसका मतलब जब हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका जो पोटेंशियल है वो
इंक्रीज हो जाता है. तो as V is directly proportional to Q, so we can have Q is directly proportional to V, or you can write Q is equal to CV. What is this C now? This is a proportionality constant, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? Capacitance. So capacitance from this formula you can see it is Q by V. Q क्या है यहाँ पर? चार्ज है. V क्या है? पोटेंशियल है. अब कैपेसिटेंस के यूनिट क्या होंगे? फैराड. This is equal to 1 coulomb by 1 volt. 1 farad is equal to 1 coulomb by 1 volt. So the capacitance of a conductor is 1 farad if the addition of a charge of 1 coulomb to it increases its potential by 1 volt. It is a very large unit. So for practical purposes, you will be saying we will be using 1 millifarad, that will be 10 power minus 3 farad, 1 microfarad, that is 10 power minus 6 farad, 1 picofarad, that is 10 raised to the power minus 12 farad. Now, for a spherical conductor of radius r with charge q, we know that V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी स्फेरिकल कंडक्टर की? यू कैन सी एज C is equal to Q by V. V की वैल्यू पुट करी यहाँ हमने, तो आपके पास आ गया C is equal to 4 pi epsilon naught R. So from here you can see that C is directly proportional to R for a spherical conductor. Now here I am giving you a question that you have seen कि जो spherical conductor है उसके R के ऊपर capacitance depend करती है. अब हमें अर्थ का रेडियस पता है, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर. आपको 4 pi epsilon naught की वैल्यू भी पता है. You can put both the values in this formula and you can see the capacitance of the earth surface कि अर्थ की कितनी capacitance है या capacity है. You will find that in spite of its large size, the capacitance for earth is very small and the value comes in microfarads. So from there you can judge कि जो farad है वो कितना बड़ा unit है. After that, I am coming to the capacitor. Capacitor is an arrangement for storing the large amount of electric charge or electric energy in small space. तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो हमारा कैपेसिटर हो उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो, ज्यादा हो. It consists of two conductors separated by the insulating medium. Generally, out of two conductors, one is given charge and another is kept earthed. Symbol क्या होता है कैपेसिटर का? That is the two equal parallel lines. ऐसे भी दिखा सकते हैं. Symbol of variable capacitor का मतलब क्या है? ये arrow लगा दिया मैंने, इसका मतलब है इस कैपेसिटर की वैल्यू चेंज हो सकती है. Variable capacitor. Now I am coming to the principle of the capacitor. Principle क्या होता है कैपेसिटर का? अभी अभी हमने बात करी है कि जो कैपेसिटर होता है उसकी एक प्लेट को हम चार्ज दे देते हैं और जो दूसरी प्लेट होती है वो अर्थड होती है. उसका भी रीजन है, we will be discussing here. Capacitance of an insulated conductor can be increased by placing uncharged earthed conductor near. पहले इसको समझते हैं. हमने ए जो प्लेट है इंसुलेटेड है, यहाँ से इसका चार्ज नीचे अर्थ में फ्लो नहीं कर सकता. इसको हमने चार्ज क्यू दे दिया तो इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा. अगर हम इसको और चार्ज देते जाएंगे पोटेंशियल और बढ़ता जाएगा. बट देयर इज अ लिमिट. अगर जरूरत से ज्यादा पोटेंशियल इसका हम बढ़ा देंगे तो वो जो इसके चारों तरफ की जो एयर है वो आयोनाइज होनी शुरू हो जाएगी और जो हमारा चार्ज है दैट विल बी गोइंग इन द एयर. यानी एक लिमिट से ज्यादा चार्ज हम यहाँ पर स्टोर नहीं कर पाएंगे. तो अगर इसकी कैपेसिटी को बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, इसके सामने एक प्लेट रख देते हैं. ये हमने प्लेट रख दी बी. अब ये पॉजिटिव चार्ज हमने दिया है तो बी के इस साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इस साइड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. अब ये नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज. और अगर ये न्यूट्रलाइज करेगा तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी. जो यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा. तो हम क्या करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से अर्थिंग कर देते हैं. अब
अर्थ में क्या होगा, अर्थ में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ फ्लो करेंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से न्यूट्रलाइज कर देंगे ताकि इसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पे ना आए, और ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो थोड़े से चार्ज को न्यूट्रलाइज करके इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सके. ओके, नाउ सपोज अ कंडक्टर ए इज गिवन चार्ज क्यू, तो उसका पोटेंशियल हो गया VA. सो इट्स capacitance is C is equal to Q by VA. Now bring another conductor B which is earthed near it. Due to induction, minus Q charge is induced on the nearer face of B and plus Q charge is induced on the farther face of B. Due to earthing, plus Q charge is neutralized, and the minus Q charge will affect the plus Q charge of the plate, hence its potential is reduced. Let potential due to plate B is minus VB, so new capacitance will be equal to C dash, that is Q divided by VA minus VB, and you can see that this value is more than Q by VA. That was the original capacity, so we can see that C dash is more than C. यानी अगर हम B प्लेट रखते हैं A के सामने और उसको अर्थ भी कर देते हैं तो ओवरऑल कैपेसिटी जो है हमारे कंडक्टर्स की, कंडक्टर A की बढ़ जाती है, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं कैपेसिटर. उसके बाद हम आ जाते हैं बेटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे. पैरेलल प्लेट है, पैरेलल का मतलब है दो प्लेट्स होंगी और वो आपस में पैरेलल होंगी. कैपेसिटर है तो डेफिनेटली चार्ज तो स्टोर करेगा ही. So it consists of two conducting plates, each of area A, separated by the small distance D. So this is the capacitor. ये एक प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हो गया है, इधर जो पॉजिटिव था उसको यहाँ अर्थ कर दिया. So let plus Q is the charge given to the conductor and minus Q is the charge induced on the another conductor. Hence an electric field is set up from positive to negative charge. Since the separation D is very small, we can assume that the field in this region is uniform. Surface charge density is given by sigma is equal to Q by A. Electric field between the plates. We have done this expression in the applications of the Gauss theorem, that E is equal to sigma by epsilon naught between the two plates of the capacitor. So if V is the potential difference between the plates, then we can write E, मैग्नीट्यूड लिखना है अगर, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट dV by dr. यहाँ पर पोटेंशियल क्या है V, और dr की जगह हम लिख सकते हैं D, सेपरेशन है, तो E is equal to V by D, so we can write V is equal to ET. E की वैल्यू ये रही, तो E की वैल्यू हमने पुट करी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D. तो अब सिग्मा क्या होता है बेटे, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज अपॉन एरिया, तो पुट कर दिया चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट D. So capacitance is given by C is equal to Q by V. I will put the value of V here. So you will get this equal to Q A epsilon naught divided by QD. Q से Q cancel हो गया, A epsilon naught by D. So this is the value of capacitance of a parallel plate capacitor. Now if dielectric medium of dielectric constant or relative permittivity K is inserted, यहाँ पर हम E नॉट यूज कर रहे हैं. E नॉट का मतलब है कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के अंदर क्या है, एयर. लेकिन अगर एयर ना हो, कोई और मीडियम हो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, तो हम क्या करेंगे, फिर हमें कैपेसिटेंस का जो एक्सप्रेशन है उसकी जगह हम लिखना पड़ेगा C डैश दैट इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स C. ये एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव करेंगे कि कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है जब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देते हैं बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर in my next video. So in my next video we will be doing the combination of the capacitors in series and parallel, energy stored in a capacitor, and after that we will be doing this dielectric insertion in the two plates of the capacitor. So read it carefully and please do like and comment if this video is useful for you all.